Good morning, all. Let's start today's with the next topic, that is software development life cycle models. Basically, in other industries like electrical and mechanical automation industries, for the development of any product, there is a fixed procedure. For example, in car making industry, there is a fixed procedure that what parts are required and what is the procedure step by step for fixing the components of that particular car, and finally it is assembled into a car which is visible to us on the roads. In the similar manner, in the software industry, that how to develop a software product, the step by step procedure to reach to the final stage can be termed as a life cycle model. And there are different life cycle models, and for which project which life cycle model will be best suitable is to be decided by the chief architecture project manager, means senior experienced members of the software industry. Might depend on projects to projects. ठीक है? ठीक है? Some projects are already developed. For example, some projects are already developed, so there is required only a component of that particular product required to be changed. And some products are is absolutely new in the market, absolutely a new product is to be developed. For example, in product industry, in product making industry, so for that research is to be done. That project is to be developed from the very scratch. From very scratch point, that product is to be developed. So for that purpose, a different approach will be followed. So depending on what task is to be done, life cycle models approaches vary. Let's proceed further about different life cycle models. So the basic the very simplest and the very basic life cycle model which we studies at BTech courses is the classical waterfall life cycle models. And in that in this life cycle model, we divide the various tasks into different parts. First is the feasibility study, requirement analysis and specifications, design, coding and unit testing, integration and system testing, and maintenance. These are the phases which are part of the life cycle model. So let us discuss about each and every part one by one. This is the diagrammatical model of that particular life cycle model. And according to this diagram, it says that once a phase is complete and a green signal has been given one to this particular phase, we will move to this phase, and there is no scope of going back. This is a kind of very idle situation that we have done with the phase 1, 2 and so on, and there is no scope of error left in the previous phases. This is a kind of a idle situation in practical real life, idle situation. So this is the diagram, and let's discuss about the different phases. That what is the feasibility study says that before moving on to some project, we check about different parameters, whether it is possible technically. Do we have the required manpower or technical persons available for that? Do we have the sufficient budget for the development of that particular project? ठीक है? तो phases between feasibility study and testing जो आता है, उसको हम लोग development phases बोलते हैं, जो आपके phases आते हैं. ठीक है? तो maintenance और जो आपका maintenance phase है, this is this is a diagram for relative efforts in the cycle. So let's discuss briefly about all these phases. Requirement analysis, basically requirement analysis says that we have to gather and we have to collect all the requirements for the project. We have chief architect has planned about the project, and
what are our requirements, technical requirements, non-technical requirements, hardware requirements, software requirements, and we have to prepare a list of all these requirements one by one, and then we have to fix all those requirements. Designing parts, how there are different designing methods, function of oriented design, object oriented design, how we are going to design all those uh, our software modules, whether it will be exploratory style of programming or whether it will be object oriented or different style of programming methods, module based is programming methods based, what how up to which level DFD, up to which level your ER diagram, how many need diagrams, different types of diagrams you will be preparing. Okay. And after that, in briefly, we can say that all the tasks in today's scenario, all the tasks is divided into different development team, different development teams. Let them developer X, Y, Z, like that, development teams, and each developer responsibility is to develop their own modules. ठीक है. And testing phase, this is and briefly we can say that testing is done to check whether all the work done is up to the mark or not. ठीक है. And other companies also provide with the maintenance services in your electrical and mechanical industry. Similarly, in software industries, companies are providing with the maintenance services. Companies जो हैं वो भी आपका maintenance services provide करती हैं. Maintenance phase consumes maximum efforts. It says that in the life cycle model that this is our maintenance phase, and maintenance phases consumes maximum efforts, and it is up to 60%. So the focus from the very beginning is that no error is left in our phase, because once your project is delivered to the client, and an error is find out, we could find some error. So then that particular error could be in any part. It can be in your SRS part, it can be in your design part, it can be in your coding part, it can be in your testing part. And if that error, let's suppose, is in your this first phase, is in your requirement and SRS phase, that we are left with this particular part, this went wrong, it means we have to track or roll back or move backward this much, and then proceed further up to each part. मीन्स आपका कितना काम बढ़ गया. अगर ये मालूम पड़ा कि आपका जो पहला फेज था, जो फिजिबिलिटी पहला या दूसरे जो फेज थे, फिजिबिलिटी एनालिसिस और रिक्वायरमेंट एनालिसिस, वहाँ पे आपका कोई पार्ट स्किप हो गया, मिस हो गया आपके टीम से. intentionally, no one commits mistakes. Intentionally, no one is committing mistakes, and something unintentionally goes wrong, and something unintentionally, in majority of maximum cases, unintentionally went wrong. ठीक है. तो आपका यहाँ पे देखें कि आपका जो है वो काफी सारा काम जो है वो आपका बढ़ जाएगा. यू हैव टू अगेन रोल बैक, देन यहाँ से आपको फर्स्ट फेज से करेक्ट करते हुए लास्ट फेज से दोबारा जाना पड़ेगा. टेस्टिंग फेज कंज्यूम्स मैक्सिमम एफर्ट्स. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई इट इज सेइंग दैट टेस्टिंग फेजेस जो हैं वो आपका मैक्सिमम उसमें एफर्ट लगता है. ठीक है. कंसिडरिंग द सिनेरियो कि आपका जो एरर है वो आपका पहली फेज में ही था. ठीक है. ठीक है. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या करती हैं, आपका उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हुए हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, हमारे पे हर फेज के बाद हमको किस तरह का आउटपुट मिलेगा. ठीक है. स्पेसिफिक मेथोलॉजीज हैं डेवलपमेंट्स के लिए कि आपको पहले अपने स्पेसिफिकेशंस फिक्स करने हैं, फिर आपको डिज़ाइनिंग पार्ट में जाना है. डिज़ाइनिंग पार्ट में ER डायग्राम, DFD, UML मॉडलिंग और दूसरे डायग्राम्स ही बनते हैं. ठीक है. फिर आपको डिफरेंट टाइप्स की उसमें टेस्टिंग करनी है, यूनिट टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग. ठीक है.
और सिस्टम टेस्टिंग इंटीग्रेशन में आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये है कि ये आपका एक प्रोजेक्ट है तो बट ऑब्वियसली बात है कि मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होना ही होना है। मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे अप्लाई होना ही होना है। एंड हर एक फेज में एंट्री के लिए कुछ कंडीशंस है और हर एक फेज से एग्जिट के लिए कुछ कंडीशंस हैं। टाइम फिक्स है, कंडीशंस फिक्स हैं, ठीक है। गाइडलाइंस क्या है, इसको हम लोग लेमन टर्म्स में कह सकते हैं कि ऑल योर लाइफ साइकिल मॉडल्स आर योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट methodologies that how to achieve, how to develop a software product। एक पर्टिकुलर जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमें किस तरीके से डेवलप करना है, हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके फ्रेश इंजीनियर्स हैं, जो आपके न्यू कमर्स इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स या मेथोलॉजीज जो हैं उनको पूरा समझेंगे, उस पूरे काम को पूरा वो समझने वाले हैं कि हाउ योर सॉफ्टवेयर इज लाइकली टू डेवलप्ड, बिकॉज वी कैन नॉट अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनी फेस। वी कैन नॉट अंडरमाइन द इम्पोर्टेंस, किसी भी फेस का जो इम्पोर्टेंस है हम उसको अंडरमाइन या ये कहें कि ये डेवलपमेंट टीम का आदमी है तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, या ये बोलें कि ये एसआरएस टीम का आदमी पर्सन है, इंजीनियर है, तो इसकी इंपॉर्टेंस कम है। नहीं, इंपॉर्टेंस सबकी अपनी जगह पर है, सबकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। वी कैन नॉट अंडरमाइन एनी वन, नाइदर टेस्टर, नाइदर योर एसआरएस टीम मेंबर और एनालिस्ट पर्सन हु गो टू द क्लाइंट एंड आस्क देम फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। बिकॉज इन रियल लाइफ हम इसको हम बोलें हिंदी में कि इस दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग हैं, सम आर एक्सट्रोवर्ट, सम आर इंट्रोवर्ट, सम आर एम्बिगर्ट। तो आपसे सब आपको क्या है कि आपको सबसे बात को जो है सबसे क्वेश्चनियर के थ्रू आपको सबसे क्वेश्चंस के आंसर निकलवाने हैं। एंड समटाइम fetching answers from introvert persons in real life is very difficult. It is their nature, we cannot do anything, but you have to you have to ask them questions very politely and in a genuinely manner so that they give answers, ठीक है। so ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेन एम ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली फिजिबल है, ठीक है, विद इन द बजट है, सो दैट विद इन द बजट है, सारे एक्सपेंसेस कट डाउन, एक्सपेंसेस बियर करने के बाद कंपनी को उस प्रोजेक्ट से कुछ बेनिफिट निकलेगा। टेक्निकली वो प्रोजेक्ट जो है वो आपका फिजिबल है। वी हैव ऑल टेक्निकल सपोर्ट विद अस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्निकल पर्संस, ठीक है। रफली अंडरस्टैंड्स फर्स्ट हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर्स जो है वो बेसिकली जो हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनने के बाद डिलीवर तो होगा क्लाइंट के पास, ठीक है भाई। कस्टमर्स को चाहिए क्या, प्रोसेसिंग नीडेड, अब इसमें हमारी प्रोसेसिंग्स क्या क्या होंगी, क्या क्या हमें चाहिए, हमें किस टाइप का डेटा देना है और हमारा इनपुट क्या होगा और हमारा आउटपुट हमें किस टाइप का चाहिए। हमारा इनपुट सिस्टम में क्या जाएगा, डिफरेंट डेटा हम इनपुट्स देंगे और हमारा आउटपुट क्या जाएगा। प्रोसेसिंग नीडेड ऑन दिस डेटा, हमें इस पर्टिकुलर डेटा पर किस तरह की प्रोसेसिंग करनी है। डिफरेंट डेटा है, अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस हैं उसमें, ठीक है, उनमें अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग होगी आपकी, ठीक है। आउटपुट डेटा टू बी प्रोड्यूस्ड, किस तरह का हमारा आउटपुट डेटा आएगा, ठीक है, और हमारे उस पर कंडीशंस क्या अप्लाई होने वाली है, कंस्ट्रेंट्स क्या अप्लाई होंगे, व्हाट विल बी अवर कंस्ट्रेंट्स। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी मॉड्यूल बना है, कोई भी प्रोसेसिंग होनी है, उसके ऊपर कोई कंडीशंस अप्लाई ना हो या उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स ना हो, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स सब जगह है, ठीक है। एक्टिविटीज क्या है, वर्कआउट एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। एक्टिविटीज ड्यूरिंग फिजिबिलिटी स्टडी, जब मेन जो फिजिबिलिटी स्टडी हम ये मतलब रफली हम ये तय कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को बना पाना हमारे कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जरूरी है कि प्रोजेक्ट एक्चुअल में है किस टाइप का। अब आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को कार ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट दे दोगे तो हाउ इज इट पॉसिबल।
भाई हार्डवेयर की असेंबली वो तो नहीं जानते भाई कि हाउ टू असेंबल, वो तो भाई आपके मानेसर प्लांट में जाएगा, जो मारुति सुजुकी का प्लांट है मानेसर में, जहाँ मारुति सुजुकी के कंपोनेंट्स असेंबल होकर कार बनती है, वो तो वहीं जाएगा भाई। ठीक है, तो ये रियल लाइफ बात हो गई। फॉर्मुलेट डिफरेंट सोल्यूशन स्ट्रेटेजीज। अब एक पर्टिकुलर काम करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर काम को करने के कई सारे मैकेनिज्म्स या मेथड हो सकते हैं। अब हमारे पास एक पर्टिकुलर काम को, लेट सपोज टास्क एक्स को करने के लिए कितने मेथड्स हैं, टास्क एक्स को करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं। अब उस पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो अल्टरनेट सॉल्यूशंस आए हैं, उन पर्टिकुलर हर एक सॉल्यूशन में कितने रिसोर्सेज लगेंगे, डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आएगी, और कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो दिस इज, ये कुछ पैरामीटर्स हैं कि हमारे पास जो हर एक मतलब n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो उन n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को हम किन पैरामीटर्स पर मेजर करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली कंपनीज, all companies are doing your cost benefit analysis. ठीक है, they perform cost benefit analysis, determine which solution will be the best, कि हमको कौन सा solution cost benefit analysis perform करने के बाद सबसे बेस्ट होगा। and all companies work on the concept of minimum input maximum output। सिंपल सी बात है भाई, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में से सबसे कम रिसोर्सेज, सबसे कम टाइम, रिसोर्सेज मींस एवरीथिंग, फिजिकल, फाइनेंशियल, मैन पावर रिसोर्सेज, टाइम। ठीक है, बिकॉज कंपनीज कैलकुलेट ऑल दीज इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स। एम्प्लॉयज अपॉइंट करने पड़ते हैं, इंजीनियर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, मैन आवर्स खरीदने पड़ते हैं। एक IT इंजीनियर 9 आवर्स अ डे का उसका शिफ्ट रहता है, 5 डेज ए वीक 9 आवर्स, उसमें 1 आवर्स का मतलब ही इज रफली वर्किंग अराउंड 8 आवर्स, roughly working around 8 hours। ठीक है, determine that none of the solutions is feasible। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ केसेस में आपका सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन जो आपने n नंबर ऑफ सॉल्यूशन सोचे हैं वो पॉसिबल ही ना हो। क्यों? क्योंकि एक तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स है, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास है ही नहीं है, टेक्निकल रीजंस हैं, उतना टेक्निकल कंपिटेंसी या टेक्निकल रिसोर्सेज कंपनी के पास है ही नहीं है, उतनी टेक्निकल जो मैन पावर है वो कंपनी के पास है ही नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एम क्या है? अब एम जो है निकल के आता है इसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन का, वो निकल के आता है कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कस्टमर की क्या है। एग्जैक्ट, वी हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड, दिस इज द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर की क्या है। डॉक्यूमेंट देम प्रॉपर्ली, वी हैव नीड टू डॉक्यूमेंट देम प्रॉपर्ली। डॉक्यूमेंटेशन, इसका इंपॉर्टेंस को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस को, कि कस्टमर या क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट शुड बी वेरी स्ट्रांग, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट शुड बी वेरी स्ट्रांग। कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज, दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए वो गैदर करनी पड़ेंगी, वो रिक्वायरमेंट्स जो है आपको गैदर करनी पड़ेंगी। डिफरेंट तरीके हैं उसके, गूगल फॉर्म बना के शेयर करा, क्वेश्चन ओवर एयर हुआ, मीटिंग अरेंज करी, फॉर्मल मीटिंग, अनफॉर्मल मीटिंग। ठीक है ठीक है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब रिक्वायरमेंट्स को समझना है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअल में हैं कौन कौन सी इसमें। ठीक है, और उनका एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद। ठीक है, कि पर्टिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं, जो प्रोजेक्ट से पर्टिकुलर कंपोनेंट्स बनेंगे, वो आपके पॉसिबल हैं या नहीं है। आगे बात करें, गोल क्या है? कलेक्ट ऑल रिलेटेड डेटा फ्रॉम कस्टमर्स। रिलेटेड डेटा हमने जो है वो कलेक्ट करा, कस्टमर से रिलेटेड डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, और जो डेटा कलेक्ट करा उसको क्या करा, उसको एनालाइज करा, एंड व्हाट द कस्टमर्स वांट। और हमने ये समझा कि कस्टमर्स एक्चुअली चाहता क्या है, व्हाट मतलब कस्टमर्स की बेसिकली डिमांड क्या है, व्हाट द कस्टमर एक्चुअली। और जब भी हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे या गैदर करने के बाद जो हमें चेक करना है वो ये है कि कोई भी
आपकी इनकंसिस्टेंसी उसमें ना हो, जो आपने जो डेटा कलेक्ट करा है रिक्वायरमेंट का उसमें इनकम्प्लीटनेस ना हो, इनकंसिस्टेंसी ना हो। इनकंसिस्टेंसी मीन्स कुछ जो फॉर एग्जांपल मीटिंग में आपने बात करी, कुछ जो मेंबर्स हैं जो मीटिंग में थे उन्होंने बोला कि उन्होंने बात बोली आपकी एक्स, ठीक है, दूसरे ने बात बोली आपकी वाई, ठीक है। इसको और सिंपल तरीके से समझ लो, और तरीके से सिंप्लीफाई करके समझ लो कि आपका एक वैल्यूड प्रोडक्ट है और फाइनल वैल्यू कैसे निकलेगी, -10। कुछ मेंबर्स ने बोला नहीं नहीं x + 10, ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना भाई। अब हमें तो अपने इसको अपने प्रोजेक्ट्स में कोडिंग के थ्रू जो है इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, इट बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। नाउ द टाई हैज टू बी रिजॉल्व्ड। इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस सिचुएशन को। नाउ द टाई हैज टू बी रिजॉल्व्ड। इट मींस there were some new members in the organizations who were not aware of the actual working procedure of the company, ठीक है। that is the only reason that why we should now this tie has to be resolved. We have to consult the persons who are in the organization from a long time, who knows the actual फाइन प्रिंट्स ऑफ द वर्क, कि एक्चुअल में ये वाला इंप्लीमेंट करना है या ये वाला इंप्लीमेंट करना है, एक्चुअल फाइन प्रिंट्स, ठीक है। रिजॉल्व इनकंसिस्टेंसीज एंड इनकम्प्लीटनेस मींस जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी होनी चाहिए, कोई भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमको नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। गैदरिंग रेलेवेंट डेटा, अब बात इसमें आगे की आपकी रेलेवेंसी की भी आती है कि जो डेटा कलेक्ट होगा, जो हमें डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा, जो हमारे इसका पूरा फाइल बनेगी SRS की, उसमें जो डेटा होना चाहिए वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, सारा रेलेवेंट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, एंड यूजुअली कलेक्टेड फ्रॉम एंड यूजर्स। और कुछ इसमें एंड यूजर से भी कलेक्ट होगा, जो कंपनी होगा। एंड यूजर मीन्स जो आपके क्लाइंट्स हैं उनसे कलेक्ट होगा थ्रू इंटरव्यूज डिस्कशंस। अब तरीका क्या होगा, इंटरव्यूज डिस्कशंस, दीज आर फ्यू मेथड्स। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, तो अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक्स के लिए जो है बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, तो अब ये हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंपनीज के अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं उनमें 150 एम्प्लॉय होना बड़ी कंपनीज में आम बात है। तो सारे के सारे अकाउंटेंट्स को बुलाया, मीटिंग बुलाई, सबसे इंटरव्यूज किया, सबसे क्वेश्चन एयर पूछा, बहुत ही फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में। लेट्स सपोज इट्स अ इनफॉर्मल मीटिंग, नॉट ए वेरी मोनोटोनस टाइप ऑफ मीटिंग, ठीक है। let us cut this word interview, let us write this word as discussion, that to be very informal, ठीक है, so that everyone can answer in a free mood, everyone can answer freely that sir this is the situation. Some people might hesitate in real life, some people hesitate in talking in meetings. If you relax the environment, then they may openly tell sir this is the situation, ठीक है। find out the requirements, to find out accountants of the informal discussion of the accountants of the organization to find out their requirements, ठीक है। the data you initially collect, डेटा हम उससे कलेक्ट करा, अब उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि उसमें कोई आपकी कॉन्ट्रडिक्शंस तो नहीं है और एम्बिगस सिचुएशन नहीं है, जैसा भी एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। और डेटा जो है वो आपका पूरा का पूरा और जो डेटा कलेक्ट हुआ है उससे पूरे सिस्टम के बारे में या पूरा जो प्रोजेक्ट डेवलप होना है उससे कुछ पार्शियली या कंप्लीट आपका पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से बनने वाला है, ये बात पूरी इससे जो है वो क्लियर होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। एक पूरा रफ फिगर, रफ स्केच टाइप समझ में आनी चाहिए, अब इस तरह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रोसीड करेगा, ठीक है। एम्बिगिटीज और कॉन्ट्रडिक्शंस, इनको आइडेंटिफाई करा, इनको फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये जो आइडेंटिफाई होगा इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, विद डिस्कशंस विद कस्टमर्स के साथ ही डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद जाके अब आपका जो है SRS डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी कि नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द
SRS डॉक्यूमेंटेशन, और जो पर्सन इसको इंडस्ट्री में परफॉर्म करते हैं दे आर डेजिग्नेटेड एज एनालिस्ट. द पर्सन हु आर डूइंग ऑल दिस टास्क इन द इंडस्ट्रीज, I am not saying that this is the only name. Depends on company to company or organization to organization that they what names of the posts they are using. ठीक है. Next comes is your design phase. Design phase basically क्या करता है, जो भी आपने SRS बनाया है उसको एक सुटेबल डिजाइन फॉर्म में लेके आते हैं, ताकि वो एक डिजाइन तैयार करेंगे उसका, ताकि उसको हम जो भी हमने मॉड्यूल्स या ये तैयार करे हैं, वट एवर फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, वट एवर मैकेनिज्म वी आर यूजिंग, उसको हम अब इम्प्लीमेंट कर पाए. ठीक है. मतलब अलग अलग n नंबर ऑफ डेवलपर्स अगर हमारे पास हैं तो उन n नंबर ऑफ डेवलपर्स को हम एक एक मॉड्यूल दे दें इन फॉर्म ऑफ सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसलिए ये आपका डिजाइन का यहाँ पे रोल आता है. ठीक है. डिजाइन ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर फेज, आर्किटेक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द SRS डॉक्यूमेंट. की जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है उसका पूरा एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं हम पूरा. ठीक है. कि हमारे कौन कौन से मेन मॉड्यूल होंगे, सब मॉड्यूल कितने होंगे, कौन सा डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, और जो डेटा होगा वो आप जो कमांड होगी या जो डेटा होगा वो यूनि डायरेक्शनल होगा या बाय डायरेक्शनल होगा या मल्टी डायरेक्शनल होगा. ठीक है. तो इस तरह से डिजाइनिंग होती है. अब ये कि इसमें दो अप्रोचेस हैं बेसिकली, ट्रेडिशनल अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. दो तरह से अप्रोचेस यूज कर रहे हैं. एंड ट्रेडिशनल डिजाइन जो है वो दो तरह से बना हुआ है. स्ट्रक्चरल डिजाइन, इसमें दो एक्टिविटीज हैं. पहला एक तो मेन है आपका स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और दूसरा है आपका स्ट्रक्चर्ड डिजाइन. स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और दूसरा है आपका स्ट्रक्चर्ड डिजाइन. तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या बोलता है, आइडेंटिफाई ऑल द फंक्शंस टू बी परफॉर्म. जो भी फंक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है, जो भी टास्क मेजर जो मेन टास्क हमें परफॉर्म करने हैं वो सारे हमको क्या करना है, हमने पहले आइडेंटिफाई कर लेने हैं. हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिए. आइडेंटिफाई जो भी बात बोली मैंने कि डेटा फ्लो, भाई कुछ ना कुछ डेटा फ्लो करेगा ना हर एक मॉड्यूल के बीच में. अब कौन कौन सा डेटा कौन कौन से मॉड्यूल के बीच में फ्लो करेगा उनको आइडेंटिफाई करना है. और क्या जो हमने एक मॉड्यूल बनाया है हमें उसे फर्दर और ब्रेकअप करने की जरूरत है. क्या जो हमारा मेन टास्क है क्या उसके सब कंपोनेंट्स, उसका जो हमारा मेन कंपोनेंट है उसका जो आउटपुट है क्या वो दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इफ इट इज डिपेंडिंग ऑन अदर कंपोनेंट्स देन दोस सब कंपोनेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन्ड, आल्सो रिक्वायर्ड टू बी कोडेड. ठीक है. सेम थिंग रिकर्सिवली. तो अगर भाई कोडिंग करनी पड़ेगी तो उनको फिर डिजाइनिंग भी करना पड़ेगा. उसको उन्होंने बोला कि दीज आर योर सब फंक्शंस, आइडेंटिफाई डेटा फ्लो अमंग सब फंक्शंस. अब भैया आप सब फंक्शंस बनेंगे तो उनके बीच में डेटा भी फ्लो होगा, तो अब डेटा क्या फ्लो होगा वो भी डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है भाई. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, बेसिकली जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है उसको हम लोग जो परफॉर्म करते हैं बेसिकली डेटा फ्लो डायग्राम्स, जिसको DFD बोलते हैं, उसके थ्रू परफॉर्म करते हैं. DFD जो हम लोग डिस्कस करते हैं जनरली वी डिस्कस अप टू 0, 1 एंड 2 लेवल तक जाता है. और जो आपका 0 लेवल DFD है इट इज आल्सो नोन एज योर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम. ठीक है. वो एक अलग टॉपिक है DFDs. कैसे DFD क्या होता है, कैसे डिजाइन करते हैं, वो जब आगे डिस्कस करेंगे तब उसको पढ़ेंगे. अभी यहाँ बात करते हैं कि आपका स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है. स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस जब हो गया आपका, यहाँ पे हम उसका स्ट्रक्चर डिजाइन बनाते हैं. आर्किटेक्चरल डिजाइन को हम लोगों ने बोला कि दैट इज अ हाई लेवल डिजाइन. एंड नेक्स्ट जो है वो आपका डिटेल डिजाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लो लेवल डिजाइन. तो जो आपका ये हाई लेवल डिजाइन है जिसको आर्किटेक्चरल डिजाइन बोलते हैं, उसमें बेसिकली करते क्या है कि पूरे सिस्टम को हम लोग जो है मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं. पूरा सिस्टम आपको अलग अलग n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में तोड़ दिया, और हर एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से क्या रिलेशन है, हर एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से क्या रिलेशन है, इन्वोकेशन रिलेशन अमंग डिफरेंट मॉड्यूल्स. डिटेल डिजाइन क्या बोलता है, डिटेल डिजाइन बेसिकली बात कर रहा है कि जो आपके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर आपका अप्लाई होगा, किस तरह का एल्गोरिथम आपका अप्लाई होगा. ठीक है.
जो आपके डिटेल डिजाइन में कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और किस व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स। अब भाई कोई काम है, अब कोई काम जो है वो अब तक आपका मैनुअली होता आ रहा था। अब क्लाइंट कंपनी ने ये बोला कि हमें सारे प्रोसेस को क्या करना है, ऑटोमेट करना है। अब जब ऑटोमेट करना है तो अब बट ऑब्वियसली बात है कि जो आपका डेवलपमेंट टीम का मेंबर है वो उसको ये पता है कि ये सारा काम ऑटोमेट करना है, तो जो डेवलपमेंट टीम के मेंबर्स रहते हैं they also have to think critically and logically that for writing the code for this particular task, what should be your pseudocode, what can be the pseudocode or what algorithmic approach I should apply so that the task is completed within minimum time or the code developed is of the least complexity. The focus on many companies is on the development of code of least complexities because of hardware limitations. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। तो आज के लिए इतने काफी है, अब कल क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल।